Good morning, dear students. We were discussing the concept physical divisions of India or physical features of India. In the previous lectures, I told you about the formation of different landforms in India. I told you about the tectonic plates and their movements or plate boundary. We have already discussed about the formation of Himalaya and northern plain of India. We have also discussed a concept that why the peninsular plateau is the stable zone of the earth. Today, we are going to discuss the main concept of this chapter, that is the physical division of India. Dear student, you are well aware that in India, there are 6 physical features are found. These are our great northern mountains, also known as the Himalayan mountain. Second is our the northern plains. Third, the peninsular plateau. Fourth, the desert, also known as Indian desert, also known as Thar desert. Fifth is our the coastal plain, and sixth is our the island group. So today we are going to discuss the very first characteristics or very first physical feature of India, that is the northern mountains. Before starting this concept, have a look on the physical map of India. Here you will notice all these physical features of India. So these physical features of India are: in the northern side, you will see the Himalayan mountain. In these brown color, you are watching the Himalayan mountain here. Next is our, here that you are watching this green portion. This consists of the northern plain of India. Next, this yellowish portion constitute the peninsular plateau of India. Next is our, this Aravalli Ranges area consists of the Thar desert of India, and this area that lie between the eastern Ghats and western Ghats, this green portion known as the coastal plains of India, and in the Bay of Bengal and Arabian Sea we have our island groups. So we will discuss these concepts today. So the very first concept that we are going to discuss is the Himalayan mountain. Dear student, listen me very carefully, very carefully. Just open your book, page number 10. On page number 10, there is a physical map of India. You have to just open it. So the very first concept that we are going to discuss is the Himalayan mountain. Dear student, first of all, we discuss about the characteristics of Himalayan mountain. The very first characteristics of Himalayan mountain is the Himalayas geologically young and structurally fold mountain. अगर आप जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इनकी फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये कैसे माउंटेन है बेटा? आपके यंग एंड फोल्ड माउंटेन. दीज आर स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया. ये आपके जो हैं नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे आपके पाए जाते हैं. हैव ए लुक इन द मैप ऑन पेज नंबर 10. You will find that they are found at the northern border of India. So this is the first characteristic. Second characteristic is these mountain ranges run in a west east direction. यानी कि ये आपकी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट में क्या है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और ईस्ट तक आपकी अरुणाचल प्रदेश तक आपकी आती हैं. तो कैसे रन है आपकी ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर. ड्रेनेज चैप्टर में आपने जो है हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ा होगा. जम्मू एंड कश्मीर के रीजन के पास कौन सी रिवर आपकी? इंडस रिवर. और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर आपकी? ब्रह्मपुत्र रिवर. सो दीज माउंटेन रेंजेस दीज रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, यानी कि ये इंडस से ब्रह्मपुत्र तक आपकी फैली हुई है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दीज हिमालयास represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. ये जो हिमालयन माउंटेन है किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? लोफ्टियस, यानी कि ये छोटे मोटे पर्वत नहीं है. लोफ्टियस, लोफ्टियस का मतलब होता है ग्रेट, बहुत बड़े बड़े. ये विशालकाय पर्वत हैं, बहुत
बड़े पर्वत हैं, एंड मोस्ट रजिज माउंटेन बैरियर, और ये एसिमेट्रिकल इन नेचर है, यानी कि ये नहीं है कि ये एक समान है, इनकी हाइट जो है वेरी करती है, दे आर रजिड इन नेचर, ये आपके जो है नेचर में रजिड है, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पीक आपकी पाई जाती हैं। फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज दे फॉर्म एन आर्क, ये आपके हिमालयन माउंटेन है। मैप में देखिए बेटा, आप जम्मू एंड कश्मीर से आपके अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, किस फॉर्म में? आपकी आर्क फॉर्म में, यानी कि कंपास से जब आप आर्क लगाते हो तो ये उस फॉर्म में आपके पाए जाते हैं, विच कवर अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इनका जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर है। And last characteristic of it is their width varies from 400 km in Jammu and Kashmir and 150 km in अरुणाचल प्रदेश। जब आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे तो इनकी विड्थ आपको ज्यादा मिलेगी, जब आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो इनकी विड्थ आपको कम मिलेगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो इनकी विड्थ है दैट इज 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में जो इनकी विड्थ है दैट इज 150 किलोमीटर। So these are the 5 characteristics of Himalayan mountain. Very first is geological young and structurally fold mountain and stretch over the northern border of India. Second characteristic, ranges run in west-east direction from Indus River to Brahmaputra River. Third is they represent the loftiest and rugged mountain barriers of the world. Four, they form the arc and the distance, they total cover the distance of 2400 kilometer. And fifth is their width vary 400 kilometer in Jammu and Kashmir and 150 kilometer in अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो हमने हिमालयन माउंटेन किया, ये हमने एज अ होल पूरे के पूरे हिमालयन माउंटेन की फीचर्स आपको बताई हैं। फर्दर अगर आप आगे देखेंगे, जैसे कि ये हिमालयन माउंटेन है बेटा आपके, ये जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेच है। ओके, जियोलॉजिकल ये आपके यंग एंड फोल्ड माउंटेन है, दिस स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश और फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आपके जो है दे फॉर्म एन आर्क, ये एक आर्क फॉर्म आपकी बनाते हैं दैट टोटली कवर द 2400 किलोमीटर डिस्टेंस। और ये आपके जो है रजिड माउंटेन है, लोफ्टियस माउंटेन है, बड़े बड़े पर्वत हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इनकी विड्थ जो है वो ज्यादा है, दैट इज 400 किलोमीटर, और जब आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो इनकी विड्थ जो है वो आपकी कम रह जाती है, जस्ट 150 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने जो किया था, ये हमने किया कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन एज अ होल। उसके बाद हम करते हैं हिमालयन रेंजेस। अवर हिमालयन माउंटेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 माउंटेन रेंजेस। ये 3 माउंटेन रेंजेस में आपका डिवाइड है, नॉर्थ टू साउथ। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ से, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये कितने पार्ट्स में आपका डिवाइड है। तो डियर स्टूडेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द वेरी फर्स्ट इज ग्रेट हिमालय, ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय। यानी कि ग्रेट हिमालय जो सबसे पहली जो आपकी रेंज है उसको हम ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, और इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सेकंड इज अवर द लेसर हिमालय, ऑल्सो नोन एज मिडल हिमालय, ऑल्सो नोन एज हिमाचल हिमालय। जो दूसरा आपका है उसको हम लेसर हिमालय, मिडल हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। थर्ड इज अवर शिवालिक रेंज, ऑल्सो नोन एज द आउटर हिमालय। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज, यानी कि आज हम जो है इन 3 माउंटेन रेंजेस की करेक्टरिस्टिक्स को करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब होता है बेटा जो हिम से ढका हुआ हो, जो बर्फ से ढका हुआ हो, यानी कि ग्रेटर हिमालय जो है पूरा साल आपका बर्फ से ढका होता है, इसलिए इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। द नदरन मोस्ट रेंज, सबसे ऊपर की जो रेंज है, आप मैप में आपका देखिए जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर का जो आपका रीजन है, सबसे ऊपर की जो आपकी रेंज है दैट इज द ग्रेट हिमालय, ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय, ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज consisting of loftiest peak,
ये आपकी ऐसी कॉन्टिन्यूस रेंज है, यानी कि ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस है बेटा आपकी। कहीं आपकी ऐसी रेंज होती है जो मर्ज हो जाती हैं, वी विल डिस्कस इन दिस कॉन्सेप्ट। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूस रेंज है जो किसी से बनी है, आपकी लोफ्टियस पीक, बड़े बड़े पहाड़ों से बनी है। लोफ्टियस पीक बड़ी बड़ी पहाड़ियों से बनी है, और उनकी एवरेज हाइट, कई बार हम मीन निकाल लेते हैं बेटा मैथ में, तो एवरेज होता है मीन, और अगर उन सारी पहाड़ियों को हम मिला दें तो उनकी जो एवरेज हाइट है दैट इज 6000 मीटर। उनकी जो एवरेज हाइट होती है वो आपकी 6000 मीटर है। तो इनकी एवरेज जो हाइट है दैट इज दी 6000 मीटर। 6000 मीटर जो है इनकी एवरेज हाइट होती है। सेकंड इज जो आपका ग्रेट हिमालय है, जो हिमाद्री है आपका, ये जो ग्रेट हिमालय है आपका, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बेटा वेल नोन, यानी कि जितनी भी वेल नोन पीक हैं, जैसे कि आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा बेटा, कंचनजुंगा का नाम आपने सुना होगा, केटू का नाम आपने सुना होगा, नंदा देवी का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारी क्या है, ये प्रोमिनेंट हिमालयन पीक हैं, और ये सारी की सारी आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं, ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जैसा कि आपको पता है कि हिमालयन जो माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन है, तो यहाँ पे जो आपके फोल्ड पाए गए हैं दे आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन्स दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, दैट इज डिफरेंट। यानी कि इसके जो आप पहाड़ियों को देखेंगे, पहाड़ों को इसको देखेंगे, लोफ्टियस पीक को आप जब इसकी देखेंगे तो ये जो आपकी पीक है एसिमेट्रिकल इन नेचर है, यानी कि किसी की स्ट्रक्चर आपको किसी और तरह की मिलेगी, दूसरी पीक की आपको किसी और तरह की मिलेगी। मैं अभी आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जो आपकी ये शो करेंगी कि ग्रेट हिमालय में जितनी भी आपकी लोफ्टियस पीक हैं दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, वो एसिमेट्रिकल इन नेचर है। द कोर ऑफ दिस पार्ट, और इसका हिमालयन पार्ट का जो कोर है, जो सेंटर है, इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट से बना है आपका, यानी कि इग्नियस रॉक से बना है। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंडेड। पेरेनियली मीन्स थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये आपका जो है बर्फ से ढका रहता है, स्नो से कवर्ड है। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस माउंटेन रेंज, और इस रेंज से जो है आपके बहुत से ग्लेशियर जो है आपके डिसेंड होते हैं, यानी कि बहुत से ग्लेशियर आपके पाए जाते हैं, जिसमें आपने सियाचिन का नाम सुना होगा जो एक फेमस आपका ग्लेशियर है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेट हिमालय। डियर स्टूडेंट, आई टोल्ड यू दैट in the great Himalaya it is famous for the prominent loftiest peak। और जो ये आपके हिमालयन है यहाँ पे, ये जो पीक्स हैं दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू आर वॉचिंग द इमेज ऑफ माउंट एवरेस्ट। द एवरेज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, एंड इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज सिचुएटेड इन नेपाल। तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइट सब्सटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है किसी से कवर्ड है, स्नो से, यानी कि ये जो माउंटेन है ये हमेशा आपके स्नो से कवर्ड रहते हैं। और जो ये येलोइश पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे जो आपकी धूप पड़ रही है, सनसाइन आपका यहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज द माउंट एवरेस्ट पिक्चर। नेक्स्ट इज अवर कंचनजुंगा। अब आप बेटा कंचनजुंगा की पीक्स को ध्यान से देखिएगा, और इसके बाद आप माउंट एवरेस्ट की पीक को ध्यान से देखिए। दोनों जो है एसिमेट्रिकल इन नेचर है, यानी कि दोनों एक जैसी आपकी नहीं है। ये ध्यान से देखिए बेटा, ये आपकी दोनों एक जैसी नहीं है, यानी कि ये शार्प पीक आपकी है कंचनजुंगा। Height is 8598 meter. It is found in the Sikkim, highest peak of the Himalayas in India। यानी कि इंडिया में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज द कंचनजुंगा, जो आपकी इंडिया में आपकी पाई जाती है, और जिसकी हाइट 8598 मीटर्स है। इट इज सिचुएटेड इन द सिक्किम। ऐसे ही बेटा आपके बहुत से ग्लेशियर्स जो हैं वो आपके इस माउंटेन रेंज से आपके ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें आपने सियाचिन का नाम सुना होगा, जो ये आपका है दैट इज दी सियाचिन।
ग्लेशियर क्या होते हैं बेटा? रिवर ऑफ आइस। 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि रिवर ऑफ आइस जो होते हैं उनको हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बेटा एक और फेमस प्रोमिनेंट पीक है K2, ऑल्सो नोन एज गोडविन आस्टिन। आपने देखा होगा ये उन दोनों से डिफरेंट है। तो ये चीज शो करती है कि दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, ये एसिमेट्रिकल इन नेचर है। जो K2 की हाइट है 8611 मीटर है एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में ये आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर द माउंट एवरेस्ट। एंड द फर्स्ट हाईएस्ट पीक इन द इंडियन यूनियन बिलोंग टू दिस माउंटेन रेंजेस। और इंडियन यूनियन बिलोंग से अगर आप देखें, यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग आप देखें, ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। पेज नंबर 10 पे आप देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में आपका कराकोरम से नीचे आपका जो है एक माउंटेन रेंज मिलेगी आपको K2। लेकिन ये हमारा विवादित क्षेत्र है बेटा, पीओके ने हायर कर रखा है। कुछ हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है दैट इज द पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और कुछ सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें आता है। तो K2 आपका पीओके में आता है, इसलिए हम सीधा इसको जो है इंडिया में नहीं ले सकते। ये विवादित क्षेत्र है, कंट्रोवर्शियल एरिया है, इसलिए हम कंचनजुग्गा को जो है आपका जो है इंडिया में मानते हैं फर्स्ट हाईएस्ट पीक। लेकिन अगर ये एरिया इंडिया में आ जाए तब आपकी इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक होगी वो K2 होगी। As I told you, all the prominent peaks are found in the Great Himalaya। तो जितनी भी आपकी प्रोमिनेंट पीक है जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मेकालू, धौलागिरी, नग्गा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, गुरला मंदाता, all are found in the ग्रेट हिमालय। जितनी भी हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपकी ग्रेट हिमालय में पाई जाती है और इनकी एवरेज हाइट आपकी 6000 मीटर है। सेकंड आपकी माउंटेन रेंज है बेटा मिडल हिमालय। यहां से भी आपका जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडल हिमालय ही पूछा जाता है। मिडल हिमालय ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय, ऑल्सो नोन एज हिमाचल हिमालय। द रेंज इज लाइंग नॉर्थ ऑफ द शिवालिक। सबसे नीचे की जो रेंज है, मैप में आप देखें, जो चंडीगढ़ के साथ का आपका रीजन है, चंडीगढ़ से जो माउंटेन रेंज आपको दिखाई देती है वो शिवालिक रेंज है। तो जब आप शिवालिक रेंज से ऊपर की ओर जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जाती हैं, सो देयर इज द मिडल हिमालय। और जब आप ग्रेट हिमालय से साउथ की ओर आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, सो देयर इज द मिडल हिमालय। सो दिस इज द मिडल हिमालय। द रेंज इज लाइंग नॉर्थ ऑफ द शिवालिक एंड साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय। ये जो आपकी है नॉर्थ शिवालिक के नॉर्थ में और ग्रेट हिमालय के साउथ में आपकी आती है, यानी कि सेंटर में आपकी आती है। द धौलाधर एंड पीर पंजाल, यहाँ के जो फेमस जो आपके माउंटेन्स हैं वो हैं आपके धौलाधर और पीर पंजाल, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त मंसूरी रेंज उत्तरांचल एंड महाभारत रेंज इन नेपाल बिलोंग टू मिडल हिमालय। यानी कि ये फेमस आपके माउंटेन हैं जो आपके जो है मिडल हिमालय से बिलोंग करते हैं। एवरेज हाइट ऑफ रेंज, इनकी जो एवरेज हाइट है दैट इज 3700 मीटर टू 4500 मीटर। इनकी जो एवरेज हाइट है वो आपकी जो है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। यानी कि अगर आप एवरेज हाइट 4500 मीटर भी लिखोगे तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनकी एवरेज हाइट जो है वो 4500 मीटर है, जबकि ग्रेट हिमालय की कितनी थी आपकी 6000 मीटर। और इनकी जो विड्थ है इन अबाउट 80 किलोमीटर, यानी कि विड्थ जो है 80 किलोमीटर तक आपकी आती है। ऑल दी हिल स्टेशन, जितने भी हिल स्टेशन है दे आर फाउंड इन द मिडल हिमालय, जैसे कि डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग बिलोंग टू दिस रेंज। कूल क्लाइमेट एंड सीनिक ब्यूटी, यानी कि यहाँ की क्लाइमेट जो है मीडियोकर क्लाइमेट है, कूल क्लाइमेट है, और यहाँ पे ज्यादातर जो है आपके हिल स्टेशन आपके पाए जाते हैं। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडल हिमालय। इसके अतिरिक्त थर्ड आपका आता है बेटा शिवालिक रेंज। जो आपकी शिवालिक रेंज है द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। जो सदर्न मोस्ट रेंज है वो आपकी जो है यानी कि सबसे नीचे की जो रेंज है वो आपकी शिवालिक रेंज है, जिनकी एवरेज हाइट आपकी 900 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर आपकी पाई जाती है। और इनकी जो विड्थ है वो वेरी करती है 10 to 50 किलोमीटर। और आपने देखा होगा कि हिमालय जो शिवालिक रेंज है
वो धीरे धीरे मिडल हिमालय में आपकी जो है मर्ज हो जाती है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है। दिस इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस रेंज, ये आपकी एक कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है। एंड मर्ज विद द अदर रेंजेस इन द ईस्ट, जब आप ईस्ट में जाते हैं तो ये मिडल हिमालय और ग्रेट हिमालय से मिल जाती है। इट इज मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, जो आपका सबसे कमजोर जो माउंटेन है वो शिवालिक है, क्योंकि ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से बना है, सच एज मड, सिल्ट, बोल्डर एंड सॉफ्ट रॉक। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपकी लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े बोल्डर जो हैं टूटकर जो हैं गिरते रहते हैं। सो सोइल इरोजन इज एट इट वर्स्ट इन दीज रेंजेस। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से सोइल इरोजन सबसे ज्यादा आपका होता है। सो दीज आर द थ्री mountain ranges of the Himalaya, or this is the division of Himalaya from north to south. It is also known as the longitudinal division of Himalaya. तो longitudinal division के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका ग्रेट हिमालय, एवरेज हाइट इज 6000 मीटर। सेकंड प्लेस पर आपका मिडल हिमालय, एवरेज हाइट इज 4500 मीटर। एंड थर्ड इज अवर शिवालिक रेंज, एवरेज हाइट इज 1100 मीटर। और उसके बाद हमारे नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बेटा जो आपका ये हिमालय जो आपका है, शिवालिक हिमालय जो आपका है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड दी शिवालिक हिमालय, यानी कि जो मिडल हिमालय है और जो आपका शिवालिक हिमालय, उसके बीच में आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वैली, लटकती हुई घाटियां, यानी कि हाइट में ज्यादा आपकी घाटियां पाई जाती हैं, जिनको हम दून के नाम से जानते हैं। जैसे आपने फेमस दून सुना होगा, देहरादून। तो देहरादून जो है एक लॉन्गिट्यूडिनल वैली है, जिसको हम दून के नाम से जानते हैं। तो देहरादून, कोटली दून, पतली दून, दीज आर सम फेमस दून ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय के कुछ फेमस दून आपके हैं। ऐसे ही हिमालय में बहुत से पासिस आपके पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका पहाड़ है। पासिस क्या होते हैं बेटा, पैदल जाने का रास्ता। जो आपके जो हिमालयन जो है आपका रेंजेस आर फॉरबिडिंग, भूल भुलैया है बेटा, आप इसमें जाओगे तो भूल जाओगे, क्योंकि सारे पर्वत आपको एक जैसे दिखाई देते हैं। कैन बी क्रॉस बाय ए फ्यू पासिस, ये केवल कुछ पासिस से ही आपके पास जो है किए जा सकते हैं। विच इज हाइयर देन 4600 मीटर अबव सी लेवल, जो तकरीबन आपके जो है 4600 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं। इनमें कुछ फेमस पासिस आपके बुर्जिल एंड जोजिला पास, फाउंड इन दी जम्मू एंड कश्मीर। बारा लालचला एंड सिपकिला पास, फाउंड इन दी हिमाचल प्रदेश। नाथुला एंड जलेपला पास, फाउंड इन दी सिक्किम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पासिस जो हैं आपके हिमालयन माउंटेन में पाए जाते हैं। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द कराकोरम पास। आपने देखा होगा दोनों साइड में माउंटेन आपके और बीच में आपका रास्ता है। तो ऐसे रास्तों को हम जो है पास के नाम से जानते हैं। दिस इज द सिपकिला पास, आप देख रहे हैं माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे थोड़ा सा समतल मैदान आता है जो आपका पास के नाम से जाना जाता है। बारा लालचला पास, लाइक दिस। इस तरह से आपके जो है अलग अलग पासिस जो है हिमालयन माउंटेन में आपके पाए जाते हैं। तो ये तो डिवीजन था बेटा आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऐसे ही हम जो है इसका रीजनल डिवीजन भी करते हैं। दिस डिवीजन इज डन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये डिवीजन जो है हम वेस्ट टू ईस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो कैसे है बेटा आपका, द हिमालय हैव बीन आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ west to east direction, and these division have been demarcated by the river valley, यानी कि इनकी जो demarcation है, यानी कि जो बाउंड्री है, these are decided by the river valley, यानी कि river valley से हम इसको डिसाइड करते हैं। so what are the regional division of Himalaya? 5 रीजनल डिवीजन है बेटा आपके हिमालय के, जिसमें सबसे पहला आपका आता है हिमालयन माउंट पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय रिवर वैली से डिमार्केटेड है बेटा, ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर, यानी कि हिमालय का वो पार्ट जो आपका इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर के बीच में आता है, वो हिमालय आपका पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सेकंड इज अवर कुमायूं हिमालय। जो कुमायूं हिमालय है लाइंग बिटवीन सतलुज रिवर टू काली रिवर। काली एक लोकल रिवर है बेटा आपकी, जो नेपाल में आपकी पाई जाती है। तो सतलुज जो आपकी सतलुज और काली रिवर जो है, इसके बीच का जो रीजन है वो आपका कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है।
Next is our Nepal Himalaya. The part of the Himalayas lying between Kali River and Tista River. जो काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच का जो रीजन है ये आपकी लोकल रिवर्स हैं बेटा, जो ये रीजन आपका जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। फोर्थ इज अवर असम हिमालय। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन तिस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर। जो तिस्ता और दिहांग रिवर, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका तिस्ता और दिहांग के बीच का रीजन है वो आपका असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहला था बेटा आपका पंजाब, द एरिया दैट लाइंग बिटवीन द इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर। दूसरा था बेटा आपका कुमायूं, द एरिया लाइंग बिटवीन सतलुज रिवर टू काली रिवर। तीसरा है बेटा आपका नेपाल, द एरिया लाइंग बिटवीन काली रिवर एंड तिस्ता रिवर। और फोर्थ है बेटा आपका असम, द एरिया लाइंग बिटवीन तिस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर। So that is the Assam Himalaya. Except this, there is the पूर्वांचल, यानी कि पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो ईस्टर्न हिमालय है आपका वो पूर्वांचल के नाम से आपका जाना जाता है। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार इज नोन एज पूर्वांचल। यानी कि म्यांमार बॉर्डर के साथ जितना भी आपका माउंटेन रेंजेस है आपके, यानी कि ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी आपके माउंटेन्स हैं वो पूर्वांचल के नाम से आपके जाने जाते हैं। और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, इनको ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एरिया आप देखें बेटा, ये एरिया जो है म्यांमार बॉर्डर के साथ साथ आपका है। तो ये सारे का सारा एरिया आपका जो है पूर्वांचल से बना है। तो ये एरिया जो है आपका पूर्वांचल को इंडिकेट करता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपका है, यहाँ पे आपका ये पोर्शन आपने देखना है, दिस इज ऑफ दी पूर्वांचल, ये पूर्वांचल को इंडिकेट आपका कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ द गारो, खासी, जंतिया, लुसई, पटकई, बूम, मीरी एंड मिसमी हिल्स। यानी कि पूर्वांचल में आपकी कई फेमस हिल्स हैं जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया, लुसई, पटकई, बूम, मीरी एंड मिसमी। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो हिल्स हैं वो आपकी पूर्वांचल में पाई जाती हैं। These हिल आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। ये आपकी स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी है, विच आर सेडिमेंट्री रॉक एंड कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे आपका जो है सेडिमेंट्री रॉक से पूर्वांचल आपका बना है और ये डेंस फॉरेस्ट की वजह से आपका फेमस है। यानी कि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पूर्वांचल। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द हिमालयन माउंटेन। In the Himalayan mountain, we discuss the longitudinal division or north to south division of the Himalaya. So this division is our Great Himalaya, Middle Himalaya and Shivalik Himalaya. Except this, we also discuss about the dunes, the longitudinal valley that are found between the Middle Himalaya and Shivalik Himalaya. That are the dunes. These are our Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun. Except this, we also discuss about the regional division of Himalaya. In the regional division of Himalaya, we have the Punjab Himalaya, Kumayu Himalaya, our Nepal Himalaya, Assam Himalaya and the Purvanchal. जो आपका पंजाब हिमालय है, it lying between the Indus River and Satluj River. Kumayu Himalaya between the Satluj River and Kali River. Nepal Himalaya lying between the Kali River and Tista River. Assam Himalaya our lying between the Tista River and the Dihang River, and the area that lying with the border of the Myanmar, that is the Purvanchal. So dear student, this is enough for today. So beta, this is enough for today. Thank you. Have a nice day. God bless you all. Beta.